नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी की संसद सदस्यता खत्म होने के बाद जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी लगातार तिलमिलाई हुई है, सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। अडानी मुद्दे से लेकर राहुल गांधी माफी मांगने तक इनकार कर रहे हैं। इस पूरे मामले को लेकर, इन तमाम आरोपों को लेकर अब केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी पर बड़ा हमला बोला है। एक तरीके से कांग्रेस पार्टी को मुंहतोड़ जवाब देते हुए कांग्रेस पार्टी की पोल खोलकर रख दी। निर्मला सीतारमण ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस पार्टी पर बड़ा हमला बोला। That Adani has been given all these things, which is not true. Let me also say he is now becoming a repeat offender in terms of putting baseless allegation against the Prime Minister. We saw that prior to 2019 election. Now he's doing it again. He doesn't seem to learn any, lessons from all these false allegations that he wants to level against the Prime Minister. But I'm asking you, you think this is happening? We've given undue favors. It was the Congress government, ma'am. I don't know if you're from Kerala, but I would like to tell you. It was the Congress government which gave on a platter the Belgium port to Adani. It was not given on the basis of any tender. Now it is not his government, it is CPM government there. But what stopped him from asking and demanding that Kerala cancel that order? Equally, in Rajasthan, the entire solar power project has been given to Adani. What stops Rahul Gandhi? Like the way, I think in 2013, when Prime Minister Manmohan Singh was outside the country, in a press conference, he came and tore the ordinance which Prime Minister Manmohan Singh came up with to amend that law in which if 2 years or more conviction happens for a person, he should not be disqualified immediately. That ordinance was brought by Manmohan Singh. He called it nonsense and he threw it in the dustbin. Like that, why doesn't he tear off that Rajasthan agreement with Adani, saying no solar power here, go away. Your Modi, Adani, bye-bye. They say no. So we don't want Modi, Adani, bye-bye in Rajasthan. Cancel that order. Why is he not saying that? And why is he not saying in Chhattisgarh the kind of projects which are being given away there? If any crony capitalism is happening, it is happening in Congress-led governments, and Rahul Gandhi will not speak a word about it. And he keeps throwing allegations against the Prime Minister. I challenge him to go and cancel all these orders which were given by his own governments. Baseless allegation को डाल दो, फिर 100 बार उसको रिपीट करो और भगवान से ये प्रार्थना करो कहीं वो छिप जाए और मुझे बेनिफिट मिले। भैया सॉरी, 2019 में राफेल के एलिगेशन में आप जब ऐसे बयान देते प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ, आप जाकर के सुप्रीम कोर्ट में माफी मांगना पड़ा। और उससे पहले आरएसएस के खिलाफ जब गलत बयान दिया कि आरएसएस किल्ड महात्मा गांधी, रिटन अपॉलॉजी देना पड़ा राहुल गांधी को। और आज बोल रहे हैं मैं गांधी हूं, सावरकर नहीं। Does he remember the 2 apologies he gave earlier? उन्होंने कहा कि अडानी को पहले थाली में परोसकर पोट दिया और अब कांग्रेस पार्टी इस पूरे मामले पर नौटंकी कर रही है। सिर्फ इतना ही नहीं, राहुल गांधी प्रधानमंत्री मोदी पर झूठे बयान देकर ये दिखा रहे हैं कि वो आदतन अपराधी हैं। और साथ ही राहुल गांधी ने जिस तरीके से ये कहा था कि मैं सावरकर नहीं हूं, मैं गांधी हूं और गांधी माफी नहीं मांगेगा, इसको लेकर वित्त मंत्री ने ये याद दिलाया कि आरएसएस पर राहुल गांधी ने जो टिप्पणी की थी, जो आरएसएस के खिलाफ गलत बयान दिया था, उसको लेकर राहुल गांधी माफी मांग चुके हैं। तो फिर आखिर किस तरीके की नौटंकी ये कांग्रेस पार्टी कर रही है? ये तमाम बड़े हमले केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से राहुल गांधी पर बोले गए हैं। तो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस निर्मला सीतारमण
ने करी और तमाम विपक्ष के बड़े मुद्दों पर उन्होंने पत्रकारों के सवालों का जवाब दिया। उन्होंने ये कहा कि विपक्ष के पास फिलहाल कोई मुद्दा है ही नहीं। वहीं राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए ये कहा कि कांग्रेस नेता एक बार फिर गलती दोहरा रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी कई बार अपने गलत बयानों की वजह से माफी मांग चुके हैं, ये वित्त मंत्री की ओर से कहा गया। क्या राहुल गांधी को अपनी माफी याद नहीं है? तो याद उनकी तरफ से दिलाया गया है कि राहुल गांधी ने 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर गलत बयानबाजी की थी। 2019 में राफेल के आरोपों में राहुल गांधी ने जो बयान दिया था उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में उन्हें माफी मांगनी पड़ी थी। उससे पहले आरएसएस के खिलाफ गलत बयान देकर उन्होंने लिखित माफीनामा जो है वो कोर्ट में पेश किया था। राहुल गांधी बोलते हैं कि मैं गांधी हूं, सावरकर नहीं। तो क्या उन्हें याद है कि उन्होंने माफी मांगी थी? ये बड़ी बात वित्त मंत्री की ओर से कही गई है। तो कहीं ना कहीं विपक्ष जिस तरीके की राजनीति मौजूदा वक्त में कर रहा है, जिस तरीके से तमाम मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश, खासतौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सीधे तौर पर टारगेट किया जा रहा है। कभी उनके सरनेम को लेकर टिप्पणी हो रही है, तो कभी अडानी को लगातार प्रधानमंत्री का परम मित्र बताकर विपक्ष बयानबाजी कर रही है। और कहीं ना कहीं जैसा कि बीजेपी का आरोप है कि लगातार विपक्ष का जो नेतृत्व है वो कांग्रेस पार्टी के जरिए ही किया जा रहा है। आपको ये बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए ये भी कहा कि अगर कोई क्रोनी कैपिटलिज्म हो रहा है तो ये कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकारों में हो रहा है। राहुल गांधी इसके बारे में एक शब्द भी नहीं बोलेंगे। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि कांग्रेस नेता को लगता है कि अडानी को ये सब चीजें जो हैं वो बीजेपी ने दी हैं, लेकिन सच ये बिल्कुल नहीं है। निर्मला सीतारमण ने कहा कि ये केरल की कांग्रेस सरकार थी जिसने अडानी को विजिंजम जो पोर्ट है वो थाली में परोस कर दिया था। ये किसी टेंडर के आधार पर नहीं दिया गया था। ये बड़ा जो कहीं ना कहीं पलटवार है कांग्रेस पार्टी पर। ये निर्मला सीतारमण जो कि वित्त मंत्री हैं देश की, उनकी तरफ से कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी पर किया गया है, जो कि अडानी के मुद्दे को लेकर लगातार जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, जब भी वो बोलते हैं मीडिया में, तो वो लगातार प्रधानमंत्री से जवाब मांगते हैं कि अडानी को इतना कुछ दे दिया। जो घोटाला हुआ, जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट सामने आई, उसके बाद से कहीं ना कहीं जो बयानबाजी का दौर है वो काफी ज्यादा हुआ। और उसके बाद अब वित्त मंत्री का ये जवाब सामने आया है। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी कई दफा झूठ बोलने के बाद माफी मांग चुके हैं। उन्होंने कहा कि अगर एक बार फिर वो पीएम मोदी पर झूठे बयान देकर दिखा रहे हैं तो वो आदतन अपराधी हैं। ये उनकी तरफ से कहा गया है। राहुल गांधी झूठे हैं, कई बार माफी मांग चुके हैं, ये भी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है। तो कहीं ना कहीं कुल मिलाकर राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी जो झूठ का पुलिंदा तैयार करती है और उसे मीडिया में पेश करती है सरकार को घेरने के लिए, जिस तरीके की बयानबाजी सरकार के खिलाफ की जाती है, उन तमाम जो सवाल थे विपक्ष के, उनका जवाब और कहीं ना कहीं बड़ा हमला कांग्रेस पार्टी को एक तरीके से आईना वित्त मंत्री ने दिखाया है कि फिर चाहे वो माफी मांगने की बात हो। जब राहुल गांधी लंदन गए थे और लंदन में उन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में जो बयान दिया था, इसके बाद उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान जो भारत के लोकतंत्र की हत्या की बात कही और अमेरिका, यूरोप जैसी कंट्री को दखल देने का प्रयास करना चाहिए, ये बातें राहुल गांधी की ओर से की गई। दरअसल उस पूरे बयान को लेकर बीजेपी लगातार राहुल गांधी से माफी की मांग कर रही है। सिर्फ इतना ही नहीं, हाल ही में मोदी सरनेम टिप्पणी के मामले में राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई गई और उसके बाद अब आपको बता दें कि राहुल गांधी की सदस्यता जा चुकी है, उनका बंगला जा चुका है और इस तरीके से अब कांग्रेस पार्टी तिलमिलाई हुई है। लगातार जो कहीं ना कहीं आरोप हैं वो लगाए जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये तस्वीर फिलहाल नजर आ रही है, लेकिन अब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ये जवाब दिया है जिसपे उन्होंने न सिर्फ अडानी के मुद्दे पर यह कहा है कि अडानी को पहले थाली में परोसकर पोस्ट दिया और अब कांग्रेस पार्टी नौटंकी कर रही है।
आपको ये भी बता दें कि कई कांग्रेस पार्टी शासित राज्य हैं जहां पर बाकायदा जो प्रोजेक्ट हैं वो अडानी ग्रुप को दिए गए हैं, फिर चाहे वो राजस्थान हो। जब पंजाब में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी तो वहां कुछ प्रोजेक्ट जो हैं वो अडानी ग्रुप को सौंपे गए थे। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी जो ये दिखाने की कोशिश करती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अडानी की संपत्ति में इजाफा कर रहे हैं, अडानी को ही सारे प्रोजेक्ट दे जा रहे हैं, सब कुछ अडानी पर ही लुटा रहे हैं। लेकिन असलियत क्या है, ये वित्त मंत्री ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए दिखाने की कोशिश की और ये साफ तौर पर कहा कि ये कांग्रेस पार्टी बताए कि केरल में जो कांग्रेस पार्टी की सरकार थी उसने अडानी को विजिंजम पोर्ट जो है वो थाली में परोस कर दिया था या नहीं। इस सवाल का जवाब जो है वो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से मांगा गया है। तो कहीं ना कहीं जो 2024 लोकसभा चुनाव करीब आ रहा है वैसे वैसे ये बयानबाजी का दौर बढ़ रहा है, वार पलटवार का सिलसिला जारी है। कांग्रेस पार्टी तमाम विपक्षी पार्टियों के साथ मिलकर तमाम मुद्दों पर सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है। लेकिन वहीं आपको ये बताते हैं कि सरकार की ओर से भी अब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कांग्रेस पार्टी पर ये करारा हमला बोला है। एक बड़ा पलटवार कह सकते हैं कि वित्त मंत्री ने किया है, कहीं ना कहीं आईना दिखाते हुए कांग्रेस पार्टी का, जिसके बाद कांग्रेस पार्टी की पोल पूरी तरीके से खुल चुकी है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।